A US company has been offered a contract of constructing a dam in an underdeveloped country. Highlight the portion underdeveloped country, for which it shall be paid pesos, the local currency of that country. The construction will be completed in 1 year time period. On completion, the US company will receive 3,000 million pesos. The project requires an immediate spending of 2,000 million pesos. The US company requires a return of 10%, that is required rate of return 10% in dollar terms. Any clear? It is the required rate of return in dollar currency term. Given the following rates, should the project be accepted? That is the question. Spot exchange rate हमको क्वेश्चन में दे रखा है. It is 50 पैसा spot dollar and expected spot exchange rate after 1 year. यानी एक साल के बाद से हमारा that is the expectation ऐसा है कि exchange rate क्या होगा 48 पैसा spot dollar. That is what is provided to us. You are required to answer the following simple questions. Whether the project should be accepted, that is the first question. उसके बाद हमको second part of the question दे रखा है जो हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे. चलो, let us have understanding of the question. Friends, question में ऐसा दे रखा है that you are required to take the decision from a US company point of view. From the US company point of view, you are required to take a decision whether to undertake a project for construction of a dam or not. That is the question. Question में friends हमको ऐसा दे रखा है, let's say year 0 में we are required to make investment of 2,000 million pesos. 2,000 million pesos are required to be invested. उसके सामने हमको फर्स्ट ईयर के एंड में we will get an amount of 3,000 million pesos. That is what they have provided. The question is providing that say spot exchange rate है 50 pesos per dollar. यानी अगर इसको हम लोग से हमारी डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करें so 2,000 divided by 5050 it comes to $40 million. उधर हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. एक साल के बाद we are expecting कि एक्सचेंज रेट होगा 48 pesos per dollar. अच्छा, again use a calculator. 3,000 divided by 48 we'll get $62.5 million. This is the amount that you are going to get after 1 year. The question is providing the information that say हमको 10% का रिटर्न चाहिए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? We understand something like this. Year 0 and end of year 1. $40 million का इन्वेस्टमेंट, $62.5 million का कैश इनफ्लो. इसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%. ईयर 0 का फैक्टर होगा 1, फर्स्ट ईयर का फैक्टर होगा 0.9091. उसके बेसिस से प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन 40 मिलियन का आउटफ्लो 62.5 into 0.9091 that is 56.82 और उसके बेसिस से हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे. इट इज $16.82 million. एनपीवी पॉजिटिव है इसलिए हम लोग हाँ बोलेंगे. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, will your answer change if a bank offers currency swap? So highlight the question. ये जो concept है that is called currency swap on the following terms. The US company may lend $40 million to the bank for 1 year at 0 interest rate. The bank will lend US company 2,000 million pesos for 1 year at 10% interest per annum. The loan and the interest will be paid in pesos currency. चलो, ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसके बेसिस से एनपीवी क्या होगा वो मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए. Let us see how to do answer. Everybody is supposed to pay attention. Second part of the question में कुछ ऐसा दे रखा है. Let us go with the information of the question. अभी हम लोग करेंसी स्वैप का मतलब क्या है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर से जा रहे हैं. हम कैसा दे रखा है विल योर आंसर चेंज, यानी ये जो एनपीवी का आंसर है वो चेंज होगा ऐसा पूछा है. इफ अ बैंक इन ऑफर्स अ करेंसी स्वैप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. क्या दे रखा है 1 यूएस कंपनी में लैंड $40 million टू बैंक फॉर 1 year एट 0 इंटरेस्ट रेट. यानी हमको एक चीज ऐसा दे रखा है कि ईयर 0 में हम लोग $40 million बैंक को देंगे और एक साल के बाद वो हमको $40 million वापस करेंगे. ऐसा हमको दे रखा है. दूसरा क्या दे रखा है द बैंक लेंड टू यूएस कंपनी 2,000 million pesos फॉर 1 year एट 10% इंटरेस्ट पर एनम. तो दूसरा ऐसा दे रखा है कि हमको 2,000 million pesos मिलेगा ईयर 0 में और उसको हमको इंटरेस्ट के सहित एक साल के बाद वापस करने का है. And the rate of interest is given as say 2,000 million pesos. So it is 2,000 into 1.10 raised to 1. ऐसा हम लोग समझते हैं. अच्छा, of course हमारा प्रोजेक्ट तो है ही 7 साल में जिसमें हमको ईयर 0 में 2,000 million pesos का इन्वेस्टमेंट करना है. उसके लिए तो ये सब बात हो रहा है और हमको एक साल के बाद 3,000 million pesos मिलने वाला है. This is what we understand is of course of the project. This is what we understand. Now listen carefully. What will happen? Year 0 and end of year 1. Listen carefully. From the US company point of view, I have to give $40 million.
So that is what we understand is a cash outflow in year 0. और ये जो 2000 मिलियन पीसास है वो मुझे बैंक से मिले और वो मैंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पीसास मेरा कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे 2000 मिलियन पीसास मिला और उतना ही मैंने इन्वेस्ट कर दिया। एक साल के बाद क्या होगा? एक साल के बाद मुझे प्रोजेक्ट से 3000 मिलियन पीसास मिलेगा और मुझे 2200 मिलियन पीसास का पेमेंट करना पड़ेगा। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर समथिंग लाइक दिस, कैश इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ईयर 0 एंड एंड ऑफ ईयर 1। मैं एंड ऑफ ईयर 1 में लिख रहा हूं यहां पे 3000 मिलियन पीसास। फिर मैं उसके बाजू में लिख रहा हूं मैं रीपेमेंट ऑफ लोन। इट इज 2200 मिलियन पीसास, ये 2200। वी अंडरस्टैंड इट इज 2000 into 1.10 raised to 1। फिर मैं लिख रहा हूं उसके बाजू में नेट कैश फ्लोस इन पीसास टर्म। कितना है? 800 मिलियन पीसा। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट एक साल के बाद क्या होगा? 48। तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो हम लोग लिखेंगे डॉलर करेंसी टर्म में। सो यूज अ कैलकुलेटर। इट इज 800 अपॉन 48, दैट कम्स टू 16.67 मिलियन डॉलर। दिस इज मिलियन डॉलर। अच्छा, उसके अलावा लिसन केयरफुली, उसके अलावा मैंने क्या किया था? मैंने बैंक को 40 मिलियन डॉलर पे किए थे और उन्होंने वो 40 मिलियन डॉलर मुझे एक साल के बाद वापस कर दिए। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स द लोन गिवन एंड टेकन बैक। ऐसा लिखा, 40 मैंने दिया तो वो कैश आउटफ्लो और 40 मेरे को वापस मिला वो कैश इनफ्लो। उसके बेसिस से क्या करना पड़ेगा? नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना। 40 का आउटफ्लो, 56.67 का इनफ्लो, उसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन और उसके ऊपर से एनपीवी का कैलकुलेशन। इसका लॉजिक भी हम लोग समझते हैं, पर ये सबसे पहले हमने कैलकुलेशन समझ लिया, इसका लॉजिक भी हम लोग अभी समझते हैं। दिस इज 0.9091। सो कैश आउटफ्लो होगा 40 का, कैश इनफ्लो 56.67 into 0.9091, 51.52। So NPV is 11.52। This is the way the NPV of the project can be calculated। Second part of the question का कैलकुलेशन वापस समझते हैं। I want you to read the language of the question, उसके साथ हम समझते हैं। प्रश्न में ऐसा दे रखा है that will your answer change if a bank offers currency swap interchange on the following terms? 1. US bank may lend $40 million to the bank for 1 year at 0 interest rate। यानी मैं बैंक को क्या दूंगा? $40 मिलियन दूंगा, उसके सामने मुझे बैंक एक साल के बाद $40 मिलियन वापस करेंगे। The bank will lend to me, to US company, 2000 million pieces for 1 year at 10% interest rate। यानी मुझे 2000 मिलियन पीसास मिलेगा और मुझे एक साल के बाद इंटरेस्ट के साथ वो वापस करना है, that is 2200 मिलियन पीसास। उसके बाद दे रखा है that's it, okay that's it। फिर ये जो प्रोजेक्ट का कैश फ्लो है वो मैंने यहाँ पे लिखा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो लिखा मैंने, और एक साल के बाद कैश इनफ्लो कितना होगा वो लिखा मैंने। फाइनली कुछ ऐसा होगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 3000 मिलियन पीसास, रीपेमेंट ऑफ द लोन इज 2200 मिलियन पीसास, तो नेट कैश फ्लो होगा 800 मिलियन पीसास। एक्सचेंज रेट हमको दे रखा है एक साल के बाद का 48। कैश फ्लोज इन पीसास करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू डॉलर करेंसी टर्म एंड इट इज 16.67 मिलियन डॉलर। लोन गिवन एंड टेकन बैक, हमने 40 मिलियन डॉलर का लोन दिया था बैंक को जो हमको एक साल के बाद वापस मिल गया। इसको डिस्काउंट करने के बाद हमारा एनपीवी आया। वी अंडरस्टैंड दैट द एनपीवी इज पॉजिटिव, सो इवन इन दिस वे द प्रोजेक्ट इज वर्थ एक्सेप्टिंग। नाउ ये जो करेंसी स्वैप का कांसेप्ट है ना वो भी हम डिस्कस करते हैं ना। बेसिकली यूएस बैंक, दैट इज यूएस कंपनी जो है ना, उनको क्या डर लग रहा है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। इन अ वे दैट से जब ये गवर्नमेंट यहाँ पे जो दे रखा है दैट्स द अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये अंडर डेवलप्ड कंट्री से जब यूएस कंपनी को अप्रोच करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, क्योंकि उनके खुद के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जबकि यूएस इज अ वेरी स्ट्रांग करेंसी और वहां पे बहुत सक्सेसफुल कंपनीज है, तो उनको बुलाया जाता है फॉर दीस काइंड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो उनको हमने बुलाया कि आप यहाँ पे आके बिजनेस करो। उनको हम लोग एक साल के बाद जो कंसिडरेशन देने वाले हैं ना वो हमारी करेंसी में देने वाले हैं। और यूएस कंपनी को क्या लग रहा है कि भाई तुम्हारी करेंसी जो है ना वो बहुत ही वॉलेटाइल है, सो देयर आर फेयर चांसेस कि एक साल के बाद एक्सचेंज रेट इज सब्सटेंशियली डिफरेंट देन व्हाट वी एंटिसिपेट। ये जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में एक्सचेंज रेट कुछ एक सब्सटेंशियली अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 100 पीसेस इज इक्वल टू $1, 200 पीसेस इज इक्वल टू $1। तो भाई ऐसा हो जाएगा ना, देनी दैट केस हमको ह्यूज नुकसान होगा। दैट इज द रीजन से दैट इज अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन दैट द यूएस कंपनी हैज फॉर द पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट। इसलिए वहां का जो बैंक है, अ काइंड ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, वो क्या बोलता है कि देखो हम लोग आपकी बात समझते हैं कि हमारा करेंसी आपके जितना स्ट्रांग नहीं है,
ड्यूरिंग दिस 1 ईयर ऐसा बिल्कुल ही हो सकता है कि हमारा करेंसी सब्सटेंशियली डिटोरिएट हो जाएगा। तो लिसन केयरफुली, आप जो 40 मिलियन का डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ना, उतने अमाउंट के रीपेमेंट का हम लोग आपको गारंटी देते हैं। यानी कि लिसन केयरफुली, यूजिंग द स्पॉट एक्सचेंज रेट 15 पीसास पर डॉलर, आपको जो 2000 मिलियन पीसास का इन्वेस्टमेंट करना है, उतने अमाउंट ऑफ द डॉलर का हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि 1 साल के बाद हम लोग आपको पेमेंट करेंगे। यानी आप ऐसा करो कि आप हमको 40 मिलियन डॉलर दीजिए, उसके सामने हम लोग आपको 2000 मिलियन पीसास देंगे, जो आपको मिलेगा वो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना बस। 1 साल के बाद लिसन केयरफुली, जो भी डॉलर करेंसी का लोन आपने हमको दिया था ना, वो इटसेल्फ हम लोग आपको रिटर्न करेंगे। और जो लोन हमने आपको दिया ना, जो लोन हमने आपको दिया उसके ऊपर आप हमको 10% इंटरेस्ट दे देगा। ये जो आपको कंसिडरेशन पे करना है, ये जो रीपेमेंट ऑफ द लोन है, वो पीसास करेंसी में है, आपको मिलने वाले भी पीसास करेंसी है। यानी क्या हो जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द लोन देयर इज नो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। बाकी का जो अमाउंट बचा, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 800 मिलियन पीसास, उसको लाइक फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट किया जाएगा डोमेस्टिक करेंसी में, दैट इज से इन डॉलर करेंसी। लोन दिया था 40 का, रीपेमेंट भी हुआ 40 का, एंड ये 40-40 इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो एनपीवी का आंसर आया फ्रेंड्स, वो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन से कम है। फर्स्ट ऑप्शन में एनपीवी है 16.82। हाउएवर इंपॉर्टेंटली क्या होगा फ्रेंड्स कि 1 साल के बाद अगर एक्सचेंज रेट में सब्सटेंशियल गिरावट है, यानी ये वाला एक्सचेंज रेट, यानी दैट केस ये सेकंड अल्टरनेटिव होगा, उसमें डेफिनेटली कम लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया ना, उतना तो अमाउंट ऑफ द डॉलर हमको वापस मिलने ही वाला है। दैट इज द रीजन द सेकंड अल्टरनेटिव, दो हैविंग लोअर पॉजिटिव एनपीवी, सेकंड अल्टरनेटिव इज प्रेफरेबल इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट, कंसीडरिंग द रिस्क ऑफ द कंपनी। यहाँ पे ऐसा स्टूडेंट आपको ऐसा लग सकता है दैट से दिस इज क्वाइट इलॉजिकल कि वो लोग हमको इंटरेस्ट नहीं दे रहे और हमको उनको इंटरेस्ट देने का है। तो फ्रेंड्स बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसा समझने का है दैट से हमको हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिड्यूस करना है, इसलिए हमको हमारी खुद की करेंसी में जो अमाउंट मिल रहा है ना, उसकी वजह से इवन दो द सेकंड अल्टरनेटिव इज से हैविंग लोअर पॉजिटिव एनपीवी, इट मे बी प्रेफरेबल फ्रॉम द यूएस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट विल हैव द लोअर रिस्क। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन का आंसर हमको यूएस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। ईयर 0 में वी हैव इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 2000 मिलियन पीसास, 1 साल के बाद हमको 3000 मिलियन पीसास मिलेगा। स्पॉट एक्सचेंज रेट है 50 पैसे पर डॉलर और 1 साल के बाद हो जाएगा 48 पैसे पर, दैट इज पीसास पर डॉलर। स्पॉट के मुताबिक वी आर रिक्वायर्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 मिलियन डॉलर और 1 साल के बाद के एक्सचेंज रेट के मुताबिक वी आर एक्सपेक्टिंग टू रिसीव 62.5। कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके एनपीवी फाइंड किया, एनपीवी पॉजिटिव है, तो हमने ऐसा लिखा कि प्रोजेक्ट हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज द वे द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेटेड। बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन किया जाता है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एक हम लोग 40 मिलियन डॉलर बैंक को देंगे, बैंक हमको उतना डॉलर वापस करेगा 1 साल के बाद, जिसमें हमको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। दो, जितना हमको इन्वेस्टमेंट करना है ना, उसका वही अमाउंट हमको मिलेगा इन फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम द बैंक, और इसी के सामने हमने 40 मिलियन डॉलर दिया है। 2000 मिलियन पीसास हमको मिला और वो हमने इन्वेस्ट कर दिया प्रोजेक्ट में। 1 साल के बाद हमको 3000 मिलियन पीसास मिलेगा और उसमें से जो लोन हमने लिया था वो लोन का रीपेमेंट होगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। नेट अमाउंट जो बचेगा उसको हम लोग हमारी डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इन द डॉलर करेंसी। जो कैश फ्लोस डॉलर करेंसी का उसको ऐसे कैसे लिखा जाएगा, उसको डिस्काउंट करके हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट इज वर्थ एक्सेप्टिंग, और सेकंड अल्टरनेटिव में एनपीवी भले ही कम है बट इट इज बेटर देन द फर्स्ट, क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क हमारा कम है।